fine. So now what we'll discuss today here is the shortest distance between the line. तो लिख लेते हैं, ये नेक्स्ट काफ़ी important topic है. So इसमें से always you will get 1 to 2 questions in your board exam. That is the shortest distance between the line. Shortest distance between the line. Shortest distance between the line. So we know that first of all that we have the total 3 types of orientation of line, that is 2 line may be parallel or 2 line may be a skew line. So that is called the intersecting line. This is the intersecting line. This is called the parallel line. This is called the skew line. So if 2 lines are intersecting, then the shortest distance between them will be 0. तो इस वाले केस में जो shortest distance होगा वो 0 होगा, because if 2 lines are intersecting तो सबसे shortest distance तो यही 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे पार कर रहे हैं. If lines are parallel, then we will learn how to find the shortest distance. And but one more thing, if the lines are parallel, then both will be parallel to a given direction vector. तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, इसका भी जो डायरेक्शन वेक्टर होगा और इसका भी होगा, दोनों आपस में सेम होगा. And for the skew line, the shortest distance will be occurs along the common normal. So this is the common normal. So this is the shortest distance we will find in the case of a skew line. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा. सो ये लाइन तो यहाँ लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी लिख दिया, समझ जाओगे तुम. दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर फिर भी लिख देता हूँ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 intersecting line will be 0. So shortest distance between 2 intersecting line will be 0. Second things, the shortest distance between 2, पहले किसका पैरेलल का ही लिख लूँ, ठीक है, between 2 parallel lines. So shortest distance between 2 parallel lines we will try to find. So we have 2 parallel line, like suppose this is the one line we have taken, and other one more line we have here, the same, like that. So this we have taken 2 parallel line. Okay, this is our L1, this is our L2, and this is the shortest distance between them, supposed to be D. D is the shortest distance, both having the direction vector as B. तो इसमें याद कर लेंगे. अच्छा, suppose we have 2 given point on the line. Here is the one point that we can suppose to be A1. Here we have another point supposed to be A2. This is another point. So the shortest distance का जो फॉर्मूला होता है इस वाले केस में, that is equal to B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड का पूरे का मैग्नीट्यूड. So this is the shortest distance between the 2 parallel line. Shortest distance between the 2 parallel line. Here अगर इंफॉर्मेशन लिखूँ तो D क्या है हमारे पास, ऑल दो D यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर का कोई मतलब है नहीं.
सो डी अपने पास क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between these two parallel line A1 क्या है, पॉइंट ऑन L1 लाइन, L1 के ऊपर का पॉइंट इज दिस वन. We have A2, that is you can say point on L2 line, that is this one here. Now so this is the things for the parallel line. and अच्छा B भी तो बाकी है. B is the direction vector of the line. ओके, तो फॉर्मूला याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर द स्क्यू लाइन. सो नेक्स्ट वी हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between skew line. So shortest distance always occurs along the common normal. Suppose this is the line 1, this is the line 2, L1 and L2, and suppose this is the common normal, means एक ऐसा लाइन जो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर हो. and what we have taken, तो इसको मैं बार बार इसको L2 लिख देता हूँ, इसको L1 लिख देता हूँ. This is the point here we have A1 and this is another point we have A2. If we join this vector, that is the A2 minus A1 vector. First of all, this is the line perpendicular to both lines. Suppose this line having the direction vector as B1 and suppose this line having the direction vector as B2. Okay, so if we want the vector perpendicular to both line, what it will be, that is B1 cross B2. So if we want a vector that is perpendicular to both, so this will what actually, इसके along जो वेक्टर होगा that is B1 cross B2, because B1 cross B2 से एक ऐसा वेक्टर मिलेगा that will be perpendicular to both vector. ओके ना. तो ये वाला बात हमने लिख सकते हो, that shortest distance occurs along common normal. Shortest distance occurs along the common normal. So यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d will be is equal to B1 क्रॉस B2 डॉट होता है, याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा डॉट A2 माइनस A1 होल डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड, पूरे का मॉड. सो दिस वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन. ठीक है क्या? हाँ सर. तो ये बस दोनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रख देना है, बाकी तो हो जाएगा क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन इसमें और आता है एक टाइप का, दैट इज फॉर फाइंडिंग द कॉमन. एक क्वेश्चन आता है इसमें हम लोगों को तीन तरह का. एक तो आता है फॉर फाइंडिंग द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक क्वेश्चन आता है फॉर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड देन
we have to find the, just a minute, hello, हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग सर, सर बोलिए सर। केमिस्ट्री टीचर सर, ठीक है सर। मैं सर अपने स्कूल में जो सर हैं उनसे मैं सर कल बात करूंगा सर, कल बात करके आपको बताऊंगा। हाँ 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 सर, हाँ सर, तो मैं पूछ लूँगा सर, कल सर से मैं पूछ करके देखूँगा, फ्री होंगे तो मैं बताऊँगा सर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, सो कहाँ थे हम, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव हियर दैट, क्या बोलना था, हाँ, सो क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, एक ही क्वेश्चन में सारा करा देता हूँ, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, बिटवीन द गिवन लाइन, सपोज x minus 2 by 1 is equal to y plus 2 by minus 2 is equal to z minus 3 by 5, and another equation supposed to be x plus 1 by 3 is equal to y minus 1 by, let us take here 4 is equal to z plus 2 by supposed to be 1. So this is we have the two equation, ठीक है। So इस दोनों इक्वेशन के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। So देखिए ध्यान से, how we can do this one. So this is we have the first point इस लाइन के ऊपर हम लोग को गिवन है, that is you can say the a1 is equal to 2i minus 2j and plus 3k. Another point a2 we have what it is, minus I then plus j minus 2। ये बात समझ में आ, कैसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे पॉइंट होता है अपने पास, यहाँ पे पॉइंट क्या है, x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू 2 हो गया, y माइनस y1 तो y1 का वैल्यू माइनस 2 हो गया, z माइनस z1 तो z1 का वैल्यू 3 हो गया। दैट ओनली वी आर राइटिंग इन द वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे लाइक दैट x माइनस x1 तो x1 का वैल्यू हो गया -1, यहाँ माइनस i हो गया, y माइनस y1 तो y1 का वैल्यू हो गया 1, z माइनस z1 का वैल्यू हो गया -2, ओके ना। एंड इफ वी राइट देयर this one direction vector, so this will be I minus 2j plus 5k. Another direction vector b2 we have 3i plus 4j plus k. So what is the formula for the shortest distance? We know that, let me first write the formula, that is b1 cross b2 dot a2 minus a1 whole divided by b1 क्रॉस b2 का मॉड का पूरे का मॉड, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, ओके ना। सो सर तो ये एक स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइन है एकदम। कैसे पता चला स्क्यू लाइन है सर, देखो पैरेलल पता कैसे चलेगा, अगर लाइन पैरेलल होता तो इसका डायरेक्शन वेक्टर का जो रेशियो है वो सेम होता, मतलब ऐसा होता ना, वो a1 by a2
शुड बी इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई हाँ। C2। तो अगर ये वैल्यू दोनों सेम हो गया किसका, डायरेक्शन रेशियो का, मतलब दिस इज द डायरेक्शन रेशियो एंड ये दोनों, अगर दोनों का अगर I J K का अगर कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो गया ना तब दोनों पैरेलल होगा, अदरवाइज स्क्यू लाइन होगा, या तो स्क्यू होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। समझ में आ रहा है? तो इंटरसेक्टिंग का पता कैसे चलेगा सर? तो अगर हम स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे एंड इफ वी आर गेटिंग द डिस्टेंस एज 0, तो इसका मतलब वो स्क्यू लाइन है, सॉरी दैट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है ना? हाँ सर। यस। सो हियर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, B1 क्रॉस B2। तो निकालिए B1 क्रॉस B2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2? B1 cross B2, that is we have here I J K, 1 minus 2 and then 5, it is 3 4 and then 1. Okay now, so what we have here, I को कर लेंगे बाहर, तो this will be minus 2 and it will be what, minus 20. Then we'll take minus j outside, so a आपका हो जाएगा 1 minus 15 and plus k outside, so it will be 4 plus 6, है ना? so a अपने पास कितना हो गया, minus 22i प्लस में हो जाएगा 14j प्लस में हो जाएगा 10k। नो प्रॉब्लम, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी गॉट इज द V1 क्रॉस B2 का वैल्यू। ठीक है ना? सो एक बार मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, चलिए निकाल कर रख ही लेता हूँ यहीं पे। सो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है क्या, एंड 14 का स्क्वायर 196 होता है क्या, 10 का स्क्वायर 100 होता है क्या। ये हो गया 6 4 10, 9 8 17, 1 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 4 2 6 और 1 7। ये होगा √780 कुछ करके। ठीक है? सो सारे वैल्यू के यहाँ लिखते हैं, दैट इज B1 क्रॉस B2, तो वो अपने पास कितना है, -22i प्लस में हो जाएगा 14j प्लस में हो जाएगा 10k डॉट A2 माइनस 7। ध्यान दे बेटा यहाँ पे A2 माइनस 7, तो देखो ये आपका A2 वाला वैल्यू है, ये A2 है और ये आपका A1 है। तो A2 माइनस 7 बताइए क्या हो जाएगा, तो -1 -2 -3 हो जाएगा क्या। हाँ। यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ, A2 माइनस 7 का जो वैल्यू निकल के आएगा सर, दैट इज हो जाएगा -3i एंड फिर हो जाएगा प्लस में 3j और ये हो जाएगा -5 में k। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है ना? दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर गेटिंग A2 माइनस 7। तो यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज -3i प्लस में 3j -5k। ओके, होल डिवाइडेड बाई क्या है इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज √780 का मॉडुलस। ठीक है ना? सो हाँ, इसको जब i.i करते हैं तो हो जाएगा 66 प्लस ये हो जाएगा 14 या 42 42, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 50 होल डिवाइडेड बाय √780 का मॉड। सो ये आपका हो जाएगा -8 और चलो इसको कर देता हूँ, हो जाएगा -16 हो जाएगा 16। सो 42 प्लस 16 हो जाएगा आई थिंक 58 हो जाएगा। दिस विल बी 58 डिवाइडेड बाय √780 का मॉड। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, दिस वन विल बी द 58/780 यूनिट्स। ओके ना? दिस इज आंसर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आता है, वी हैव वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन, दैट इज फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर
कूलर पहला क्वेश्चन। सेकंड हो जाएगा आपका सपोज टू बी इमेज ऑफ पॉइंट, एंड थर्ड हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, suppose to be here point I am giving 1 minus 1 and 2 to the line x minus 2 by minus 1 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 1. So this is the we have a line and we are given with the points and we have to find the all these three things. Okay, so let us do how we can. So let me first draw the diagram for this question. Suppose this is the given line we have and we have a given point here, point A, 1 comma minus 1 comma 2, and you know the meaning of foot of perpendicular is this is the point. So this point will be the foot of perpendicular whose coordinate we want to find, एंड इमेज मतलब इसका रिफ्लेक्शन। अगर इस लाइन को मैं अगर मिरर मान लूँ तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज़ द इमेज का पॉइंट, दैट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी. So these are the information we have to solve. Okay na? So fine. See what we can do. So acha. First of all we have to take a general point on this line. So whenever we need to take any general point on the line, तो इसको हम lambda मान लेंगे and we'll find the value of x. So using this one here, x minus 2 divided by minus 1 is equal to lambda. So value of x we will get 2 minus lambda. Value of y we will get 2 lambda minus 1 and value of z we will get lambda plus 1. So हमने क्या किया, पॉइंट p को lambda के फॉर्म में निकाल लिया, that is 2 minus lambda comma 2 lambda minus 1 comma lambda plus 1. So this we got the point p. कोई दिक्कत नहीं. सेकेंड थिंग, इस जो लाइन है इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज वी हैव माइनस आई प्लस 2j प्लस k. So we have also the direction vector of this line. Okay fine. Now देख लीजिए, अब हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट विल ड्रॉ द AP वेक्टर यू कैन से. सो अगर हम AP वेक्टर ड्रॉ करें सर, ज्वाइन करें दिस वेक्टर को, सो वी हैव 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ. सो हम सीधा माइनस कर सकते हैं, तो 2 माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू आई प्लस 2 lambda minus 1 plus 1 into j plus lambda plus 1 minus 2 into k. So this is the point we have, that is we are getting 1 minus lambda into I, ये तो कट जाएगा, plus 2 lambda into j and here we will get lambda minus 1 into k. So this we have the AP vector. You can check one thing here, AP vector and ये जो वेक्टर B हमने लिखा है, दोनों के तो बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेक्टर B है वो इसके अलॉन्ग है, AP वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर में है. So we can say that AP vector dot B vector is equal to 0 हो जाएगा सर. दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0. सिंपली डू द डॉट प्रोडक्ट. सो AP का मतलब अपने पास कहाँ लिखा हूँ, ये है ना AP वेक्टर, तो हो जाएगा -1 इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 इंटू लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0. सो वी आर गेटिंग -1 प्लस लेमडा प्लस में हो गया 4 लेमडा प्लस में हो गया लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो 4 1 5 1 6 लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 2. सो लेमडा का वैल्यू हो गया 1/3. समझ में आया ना. सो व्हाट वी गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा 1/3. वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा मीन्स हम P पॉइंट निकाल सकते हैं. हमारा P पॉइंट क्या था, देखिए 2 माइनस लेमडा, दैट इज हो जाएगा 2 माइनस 1/3 पहला पॉइंट.
दूसरा पॉइंट है 2 लेमडा माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 1/3 माइनस 1, देन लेमडा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, 5/3, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा 4/3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया P, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. Second, we have to find the this one perpendicular distance. That is also very easy now, because if we have 2 points, so using 2 points we can find the perpendicular distance easily. So अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे AP निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं हम, because point A तो पता ही है ना। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला यूज हो ना हम लोग को तो इसमें वो यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, नॉर्मल, अच्छा ठीक। जो क्लास 10 से पढ़े थे ना। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट खाली z है तो z के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब ध्यान रखो ये होता है अपने पास फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सो दिस थिंग्स वी हैव टू राइट, okay na? So yes, so what we can get here, that AP is equal to root under of वैल्यू तो पुट कर ही लोगे, ये है 1 माइनस 1 2 था, सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 एंड 2 है ना, सो 1 माइनस हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, और ये -1 है प्लस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर एंड 2 था तो 2 माइनस 4/3 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो पहला आंसर तो दूसरा आंसर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया क्या? सॉल्व कर लोगे ना? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ सॉरी दिस इज द नॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये है यहाँ पे, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। थर्ड वी हैव टू फाइंड द इमेज। इमेज भी आसानी से निकाल लेंगे हम लोग, कैसे? यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, बिकॉज वी हैव द पॉइंट ए दैट इज 1 माइनस 1 एंड 2, वी हैव द पॉइंट A dash we need to find actually, and but we have one point P, that is the mid point. पॉइंट P हमने क्या निकाला? अभी तो निकाला, दैट इज आई थिंक 5/3 आया है, -1/3 आया है, एंड ये आया है 4/3। सपोज कर लेते हैं सर ये पॉइंट XYZ है, मतलब क्या होगा कि P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ A डैश है इसमें, P is the mid point of A and A डैश, उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला सब लोग को पता है ना, x1 प्लस x2/2 हो जाता है, यानी कि x प्लस 1/2 जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 5/3 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, दैट इज 10/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7/3, x आ गया। सिमिलरली y निकाल लेंगे, दैट इज y, यहाँ पे ऊपर का वैल्यू -1 है तो y माइनस 1/2 का वैल्यू -1/3 होना चाहिए, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, जो कि वैल्यू हमारा 1/3 आ जाएगा। एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z ऑल्सो, दैट इज z प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4/3, दैट विल बी z प्लस 2 इज इक्वल टू 8/3, और वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू दैट इज 8/3 माइनस 2, तो what will be 2/3. So that is the image point we are getting over here, 7/3, 1/3, 2/3। तो इस तरीके से हमारा इमेज भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन आता है ना, दिस यू विल गेट इन योर 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 नंबर में वाला क्वेश्चन, हाँ 5 मार्क्स में वाला आता है, और आता ही आता है फिक्स। तो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है क्या? हाँ सर। सो नेक्स्ट बता दीजिए।